Hi everyone. Today now we will start split half reliability analysis. We have already done reliability analysis in our earlier video. I have used alpha method, right? Alpha model, Cronbeck alpha model. But now reliability analysis I am doing on the basis of split half reliability analysis. So first of all, just brief up. Reliability is the property by which consistent results are achieved when we repeat the measurement of something. Right? Reliability means हम जब एक चीज को बार बार कंसिस्टेंसी के साथ उसको अगेन एंड अगेन टेस्ट करते हैं तब स्कोर शुड बी सिमिलर राइट मेजरमेंट शुड बी सेम सो दैट इज नोन एज रिलायबिलिटी हम क्वेश्चन की जो डेटा है उसकी रिलायबिलिटी को हम चेक करना चाहते हैं तो हम इस वीडियो में स्प्लिट हाफ मेथड के थ्रू उसको टेस्ट करेंगे a very popular method है split half method. A questionnaire used on similar population that produces similar result can be termed as reliable. Consistency of form and manner of asking questions, their wordings, the amount of structure, etc. generally ensure reliability. Right? So this is just a reliability definition. And split half reliability method means what? What we are going to do in this particular video to know the internal consistency because हम internal consistency that is the in this instrument whatever is the questions we had responses we had collected so we want to know what is the internal consistency. The item on the scale are divided into two halves and the final half scores are correlated. राइट हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया अपने जितने भी हमारे स्कोर्स थे जो पैरामीटर्स थे उनको इक्वली डिवाइड कर दिया एंड उसके बाद हमने उनका कोरिलेशन चेक कर लिया राइट तो हाई कोरिलेशन मींस in between these halves higher internal consistency or splitting of the halves can be even or odd number basis or it can be randomly also. तो हम जो अभी इस वीडियो में करेंगे हम दोनों मेथड से करके देखेंगे फिर हम उसका डिफरेंस देखेंगे राइट कहाँ डिफरेंस आ रहा है राइट तो मेरा जो डेटा है सेम एग्जांपल आई एम कैरिंग फॉरवर्ड दैट एग्जांपल आई हैव ऑलरेडी टेकन इन माय पास्ट वीडियो आल्सो. An advertising firm was interested in developing a scale to measure the credibility of celebrities in public opinion so that the right celebrities could be chosen for endorsing products based on extensive literature. They identified a list of 14 qualities which could be important for establishing the credibility of some popular celebrities on a scale. This one is the credibility of a celebrity in a public opinion. Respondents were asked to rank the credibility of some popular celebrities on a scale of 1 to 5 with respect to those qualities, and data for 56 respondents are given. Right. So, what are these 14 characteristics on which we are measuring, right, the credibility of the celebrities? So there is these are the 14 parameters: attractive, classy, beautiful, and elegant, independent, honest, etc. So same kind of parameters we have taken in earlier video also. But here is we are going to apply split half method, right? So now I am opening up my SPSS file. Now you could see here, and you could see here in my SPSS file. These are my variables, right? You could see here. These are some of the those have subscribed my channel and they had asked me कि ma'am please take a session on this. Those are the new learners. Take a session on they had given all these comments in my comment in my comment section. They said कि एक section एक वीडियो आप इस पर भी बनाइए कि कैसे हम डेटा की एंट्री करते हैं. Those are the फर्स्ट टाइम यूजर ऑफ SPSS कि हम इस डेटा को कैसे एंटर करते हैं किस बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं ऑर्डिनल है नॉमिनल है स्केल है कैसे हम इस डेटा की एंट्री करते हैं और कैसे हम एक्सेल से सो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टेक वन सेशन ऑन दिस SPSS एंट्री एंड सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी मेरा नेक्स्ट वीडियो इसी पर होगा. नंबर वन इज स्केल
how many types of scale. And after learning these skills, then you will understand what do you mean by nominal, what do you mean by ordinal, and what do you mean by this scale, right? So all those things we will discuss in the next video, but not here because this is the entirely on the split half reliability. तो हमने यहाँ पर already data is entered, and this one is the respondent's ID, right? And that is nominal. Nominal means simply a number we had assigned to them. And these all are my 14 parameters: attractive 1, classy 2, beautiful 3, and all these things. And why I had given it this time this number, इसकी मैं इम्पोर्टेंस आपको आगे अभी इसी वीडियो में बताती हूँ क्यों मैंने इसको 1 2 3 4 5 नंबर मैंने लास्ट वीडियो में नहीं दिए थे, बट यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मुझे करना पड़ा क्योंकि इसका यूज मुझे आगे करना है। अब आप ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसके डिग्री को यहाँ पर ये डेटा मैंने कलेक्ट किया है 5 लिकर्ट स्केल पर। 1 मीन्स स्ट्रांगली डिसएग्री, 2 मीन्स डिसएग्री, 3 मीन्स न्यूट्रल, 4 मीन्स एग्री, 5 मीन्स स्ट्रांगली डिसएग्री। ये कैसे एंटर करते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा डेटा एंट्री आपको सिखाऊंगी, कैसे हम एंटर करते हैं और कैसे हम कहीं पर अगर में कोई एक्सेल फाइल रखी हुई है हम उसको कॉल कर लेते हैं अपने डायरेक्टली इस वीडियो में। मतलब दो मेथड होते हैं, एक तो हम ये मैं डिस्कस करूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में कि पहले हम वेरिएबल डिसाइड करते हैं फिर हम डेटा एंटर करते हैं यहाँ पर, राइट? और अदरवाइज हम क्या करते हैं, पहले हम फाइल कॉल कर लेते हैं फिर हम वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। तो दोनों तरीके से मैं आपको डेटा एंट्री करना सिखाऊंगी एंड आई विल एक्सप्लेन यू ऑल 4 टाइप्स ऑफ स्केल्स आल्सो, पहले स्केल फिर डेटा एंट्री, राइट, इन द नेक्स्ट वीडियो। तो जो हमारे बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, राइट? अब ये मैंने, आप देखिए मैंने जितने पैरामीटर्स यहाँ डिफाइन किए वो उतने पैरामीटर्स मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं मेरी हेडिंग्स में, राइट? 1 2 3 till 14 एंड दिस डेटा आई हैड कॉपीड फ्रॉम 56 रेस्पोंडेंट्स का डेटा है जो मैंने कहाँ से लिया है, यहाँ वर्ड डॉक्यूमेंट पे ऑलरेडी आई हैड फीड, करेक्ट? मैंने उसको वहां कॉपी कर दिया। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हम क्या करेंगे, हमें स्प्लिट हाफ मॉडल से इनकी रिलायबिलिटी को चेक करना, इंटरनल कंसिस्टेंसी को चेक करना। हमने एनालाइज पे गए, देन स्केल पर हमने क्लिक किया, देन रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी ओपन होते ही, राइट, अभी तो यू कुड सी हियर आपको इस फॉर्म में मिलेगा ये जब आप इस पर क्लिक करेंगे फर्स्ट टाइम। यहाँ सारा डेटा यहाँ पर आ चुका है, so all the 14 parameters are reflecting here and this is the, you could see here, and respondent ID is also reflecting here। अभी हम क्या करेंगे, एक फास्ट तरीका ये होता है, हमने कंट्रोल ए किया, कंट्रोल प्रेस करके ऊपर फर्स्ट हम, क्योंकि बिकॉज रेस्पोंडेंट आईडी इज नॉट आर वेरिएबल, रेस्ट ऑफ द 14 वेरिएबल्स हमने उसको डायरेक्टली शिफ्ट कर दिया। एक तो ये तरीका होता है, राइट? और एक तरीका ये होता है कि आपने वन बाय वन एक एक को आपने ऐसे शिफ्ट किया, तो इट विल टेक टाइम। आप देख लीजिए आपको कौन से वेरिएबल पहले चाहिए कौन से बाद में चाहिए, ये मेथड भी मैं यूज करूंगी, राइट? तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, व्हाट आई एम डूइंग, मैं सारे वेरिएबल्स को, राइट, एक साथ में शिफ्ट कर रही हूँ टूवर्ड्स द राइट साइड डायलॉग बॉक्स। यहाँ आप देखिए मॉडल में एक एरो है, यहाँ पर मैंने कहा स्प्लिट हाफ, स्प्लिट हाफ पर मैंने क्लिक कर दिया क्योंकि मुझे स्प्लिट हाफ मेथड यूज करना है। स्केल एंड स्केल इफ आपको जो भी चीजें चाहिए, मीन वेरिएंस, कोरिलेशन एंड दिस वन इज द कोरिलेशन, देन यू हैव टू प्रेस कंटिन्यू, देन ओके। दिस इज माय आउटपुट फाइल, यू कुड सी हियर रिलायबिलिटी का ये मेरे पास आउटपुट फाइल आ गया। केसेस 56 है, 100% है, नो केसेस एक्सक्लूडेड, व्हाई? बिकॉज देयर इज नो मिसिंग वैल्यू, कोई भी केस में एक्सक्लूड नहीं हुआ है। टोटल नंबर ऑफ केसेस आर 56, 100%। अब हम बात कर रहे हैं क्रॉनबेक अल्फा की, तो क्रॉनबेक अल्फा में यू कुड सी हियर पार्ट 1 पार्ट 2, राइट? अब आप देखिए इसने क्या किया, मेरे इसमें टोटल पैरामीटर्स कितने थे, 14 थे, उसने एग्जैक्टली फर्स्ट हाफ ले लिया 7 पैरामीटर्स को, जिसका आप देखिए क्रॉनबेक अल्फा 0.703 है, और सेकेंड हाफ में आपके सेम 7 नंबर ए एंड बी, यू कुड सी हियर, राइट? ए आइटम्स यहाँ पर देखिए आप डिफाइंड है, ऑल दीज पैरामीटर्स आर डिफाइंड हियर। बी में क्या लिया है इसने, ये भी यहाँ नीचे डिफाइंड है, राइट?
टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 14 हो गई, क्योंकि मेरा नंबर क्या था, इवन नंबर था, ऑड नंबर नहीं था, 14 आइटम्स थे. Correlation between forms, this is the correlation, right, in both these forms, right, in both these division. Then Spearman Brown coefficient is 0.729. What is this? 0.729. This is the Spearman correlation, right? And after this Spearman correlation, यहाँ पर अब आप देखिए, I will carry forward this thing in my Word document. यहाँ मैंने इसको कॉपी करके आई एम कैरिंग फॉरवर्ड इन माय वर्ड डॉक्यूमेंट. तो आउटपुट में देखिए दोनों मेथड यहाँ पर यूज कर रही हूँ, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ तरीके से भी कर रही हूँ मैं, एंड एज वेल एज आई एम यूजिंग एज ऑड एंड इवन. आप दो तरीके से डेटा को टेस्ट कर सकते हैं, ऑड और इवन बेसिस पर भी स्प्लिट कर सकते हैं, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ पे भी. तो दिस इज दी ऑल माय डेटा इज ट्रांसफर्ड हियर. मैंने यहाँ कॉपी कर लिया. मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, नंबर ऑफ आइटम्स इन बोथ दीज पार्ट्स आर इक्वल. 14 टोटल आइटम्स थी, 7 इज डिवाइडेड, एंड यू कुड सी हियर इसने आइटम्स के नाम भी यहाँ पर मेंशन किए हैं कि कौन से पैरामीटर्स फर्स्ट हाफ में गए हैं, कौन से पैरामीटर्स पार्ट टू में गए हैं, राइट. Some statistics also here, right? Complete. So, but basically the most important is this is RD, this one is the RD reliability. Spearman Brown coefficient is here 0.729, right? अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार हम एक्सेल में भी टेस्ट करते हैं, राइट? कैसे आया ये कोरिलेशन, कैसे आया, ये वैल्यूज कैसे आए, राइट? दिस वन इज ये 0.74 हमने कैसे अचीव किया, राइट? चलिए अब हम चलते हैं एक्सेल शीट. एक्सेल शीट में मैंने क्या किया, अपने ऑल दी 14 वेरिएबल्स आई हैव ट्रांसफर, राइट? आप ये देखो सीरियल नंबर, दिस इज माय सीरियल नंबर, यू कैन सी हियर सीरियल नंबर. इसको बोल्ड कर देते हैं जिससे कि ये डिस्टिंग्विश हो जाएगा. दिस इज या 56 रेस्पोंडेंट्स एंट्री, ऑल 14 पैरामीटर्स आर हियर, राइट? हमने क्या किया, 14 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 7 और 7 में ये डिवाइड हो जाता है, राइट? मैं इसको डिफरेंट कलर से कर देती हूँ, दैट इज फॉर योर कन्वीनियंस, आप इसको समझ पाएंगे, राइट? तो नाउ 7 एंड 7 पैरामीटर्स. अब मैंने क्या किया, फर्स्ट हाफ का यहाँ पर मैंने ये दैट इज द सम, राइट? सम टोटल है ये. हमने इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाया, व्हाट आई हैव टू डू, ये अभी इसको कैसे करेंगे, लेट मी एक्सप्लेन यू कैसे आएंगे वैल्यूज. ठीक है, यहाँ फर्स्ट हाफ में आप यहाँ सेल पर आप रखेंगे, ठीक है? इसको ही पूरा डिलीट कर देते हैं, दैट वुड बी बेटर टू यू, कि यू वुड अंडरस्टैंड कि हमने कैसे काम किया है इसमें. ये देखिए, हमने यहाँ पर फर्स्ट हाफ पे सम करने के लिए क्या करना होगा, इक्वल देन SUM सम. सम फंक्शन आप यहाँ पर लेंगे, राइट? सम फंक्शन के बाद अब आपने यहाँ सम करना है, राइट, फ्रॉम फर्स्ट वेरिएबल टू सेवेंथ वेरिएबल. हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, then we have close bracket and यहाँ आपके पास जैसे फर्स्ट आएगा, सेम फॉर्मूले को आप नीचे तक स्क्रॉल डाउन कर देंगे और ये यहाँ पर सबका सम आ जाएगा फर्स्ट हाफ का. फर्स्ट हाफ में ब्लू पार्ट की मैं बात कर रही हूँ, फर्स्ट हाफ. सेकेंड हाफ में भी हम यहाँ पर अगेन व्हाट वी हैव टू डू, हम यहाँ सम करेंगे. सम में आप देखिए अगेन यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर दी हूँ क्योंकि बिकॉज फॉर यू शुड अंडरस्टैंड फर्स्ट. Again, same process we had applied, equal to sum, right? Sum function में again variable 8 से लेकर ILM till 14 तक, right? We have taken enter and इसको हम scroll down कर देंगे तो हमारे पास पूरे टेबल का sum आ जाएगा till the 56 entries. अब हम इसके बीच में कोरिलेशन निकालेंगे. कोरिलेशन निकालने के लिए इट्स वेरी वेरी सिंपल, राइट?
हम यहाँ क्या करेंगे, इक्वल टू कोरिलेशन। देखिए ये फंक्शन आ गया। फंक्शन फंक्शन में आप देखिए क्या लिखा, एरे 1 एरे 2। तो दिस इज माय एरे 1, दिस इज माय एरे 1। मैंने इस पूरे एरे 1 को सिलेक्ट कर लूंगी मैं। आई हैव सेलेक्टेड एरे 1, ठीक है, कॉमा, देन एरे 2, देन एरे 2। एरे 2 मैंने सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज्ड एंड याद देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू आ गया। दिस इज द कोरिलेशन जो मैंने पहले से कैलकुलेट करा हुआ था, इसी तरीके से या दिस इज द कोरिलेशन, करेक्ट, दिस इज द कोरिलेशन वैल्यू। हमने किस तरीके से इसको किया। अब आप देखिए क्या ये कोरिलेशन वैल्यू दैट इज सेम कैलकुलेटेड बाय एसपीएसएस, क्रॉस चेक कर लेते हैं। एसपीएसएस ने कोरिलेशन वैल्यू कितना निकाला था, देखिए 0.74। हम वर्ड डॉक्यूमेंट में चलते हैं, 0.74, राइट। 0.74 is my correlation। ये आपका देखिए correlation between forms, this is the 0.574 और मेरा एक्सेल क्या कह रहा है, 0.574 0.574 एंड सेम इज माइन। अगर मैं इसको 3 डिजिट तक कर लेते हैं इसको, राइट, तो व्हाट वी हैव टू डू, हमने इसको इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं साइड पे। आई जस्ट वॉन्ट नंबर, मुझे सिर्फ 3 डिजिट्स तक दे दो। ओके देखिए 0.57, इज इट ओके, 0.574 एग्जैक्टली कोरिलेशन जो हमारा एसपीएसएस ने कैलकुलेट किया वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम ऑड एंड इवन के बेसिस पर, क्योंकि मोस्ट पॉपुलर मेथड है ऑड और इवन मेथड फॉर स्प्लिटिंग दी वेरिएबल्स। तो ये मैंने किया था फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ बेसिस पर। अब सेकंड को भी हम चेक करते हैं ऑड एंड इवन बेसिस पर। अगेन वी विल गो टू स्केल, रिलायबिलिटी एनालिसिस, सारे पैरामीटर्स को हम वापस शिफ्ट कर देंगे इस तरफ, राइट। अब ऑड नंबर क्या क्या है, ठीक है, दिस इज द ऑड नंबर, पहले शिफ्ट कर दिया, करेक्ट। थर्ड इज माय ऑड नंबर, पहले मैं सारे ऑड नंबर उधर ले जाएंगे जिससे कि एक ग्रुप बन जाएगा, राइट। तो 7 पैरामीटर्स मेरे फॉल करेंगे ऑड नंबर, क्योंकि आई हैव टोटल 14। जितने भी ऑड नंबर्स हैं मैं उसको उधर शिफ्ट कर दूँ। तो हाउ मेनी देखिए आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ट्रांसफर्ड है। अब आप समझेंगे मैंने वहां नंबर क्यों दिए थे। मैंने आपसे कहा था, मैं आपको बाद में बताऊंगी कि वाई हैड असाइन नंबर, हर पैरामीटर के साथ मैंने नंबर, जिससे कि हमें कैलकुलेट करने में आसान है विच वन इज द ऑड विच वन इज इवन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सारे इवन नंबर्स को उधर शिफ्ट कर, जितने भी इवन नंबर्स हैं हम इस तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो ये अपर वाले पार्ट को एक ग्रुप बनाएगा ऑड का, और इवन का ये एक ग्रुप बना देगा। तो नाउ रेस्ट ऑफ द 7 पैरामीटर्स आर अगेन सेम, स्प्लिट हाफ पर आप रहेंगे। स्टैटिस्टिक्स पे जो हमें चाहिए था सब कुछ एवरीथिंग इज सेम, राइट। कंटिन्यू हमने किया, ओके प्रेस कर दिया। अब आप देखिए ये हमारा जो रिजल्ट आया है रिलायबिलिटी, बेस्ड ऑन दैट इज बेस्ड ऑन that is based on entirely, it is based on odd and even number, same number, no missing value। but अगर आप देखें इसका correlation between forms 0.850, how much is 0.850, right। और जो हमारा प्रीवियस आया था what was it, यहाँ आप देखो 0.57। और आप इसका क्रॉनबेक अल्फा में भी चेंजेस आ देखिए, यहाँ 0.703 था पार्ट ए का, पार्ट बी का कितना था 0.878। बट यहाँ पर हम चेक करते हैं व्हाट इज आवर क्रॉनबेक अल्फा 0.654 पार्ट ए, मतलब ऑड नंबर वाला, ऑड नंबर, इवन नंबर का 0.823 अगेन, राइट। एंड दिस इज आवर कोरिलेशन मेथड और स्पीरमैन ब्राउन कोफिशिएंट, दिस इज आवर रिलायबिलिटी कोफिशिएंट, रिलायबिलिटी चेक 0.919, ठीक है। इसको भी हम वहां कॉपी कर लेते हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में। ये ऑड हाफ एंड सेकंड एंड इवन हाफ बेसिस पर मैंने जो टेस्ट आया उसको मैंने यहाँ कॉपी कर दिया। तो अब डिफरेंस आई हैड ऑलरेडी शेयर्ड विद यू, व्हाट इज द डिफरेंस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक बार हम इसका अच्छा इसको भी आप, हाँ ये भी एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, कोरिलेशन बिटवीन फॉर्म्स। अब हम फिर से चेक कर लेते हैं एक्सेल में जाकर इसको। हमने यहाँ पर तो किया था फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ बेसिस पे,
ठीक है, यहाँ हम फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ बनाएंगे ऑड और इवन के बेसिस। ठीक है, अब हमने देखिए यहाँ पर क्या किया, इसको मैं डिलीट कर रही हूँ। अब हम कैसे लाएंगे, इक्वल टू, अब जितने भी मेरे ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, उसको मैं लेती जाऊँ। ऑड नंबर, राइट, 3, 5, then 7, right? Odd numbers here 7, then 9, then 11, then 13, right? All these odd numbers are here. So मैं इसको दोबारा रिपीट कर रही हूँ, क्यों? बिकॉज मैं इसको अब क्योंकि बिकॉज वी आर नॉट फॉलोइंग दिस थिंग, तो आई डोंट वांट एनी कलर फिल, मुझे नहीं चाहिए अभी, मुझे सिर्फ ऑड और इवन बेसिस पर चाहिए। तो व्हाट आई विल डू, इक्वल टू सम फंक्शन, एंड ऑड और इवन नंबर को हम यहाँ से वन बाय वन वी विल सेलेक्ट। ठीक है, दिस इज माय ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11 and 13 एंटर। राइट, सेम वे इसको हम स्क्रॉल डाउन कर देंगे ताकि ये फॉर्मूला नीचे तक और विल बी एप्लीकेबल टिल 56 रेस्पॉन्ड। करेक्ट, same way we are going to apply here. Again I am deleting this, right? यहाँ देखिए sum, ठीक है, sum function, then अब मैं यहाँ even numbers, variable 2, right, variable 4, variable, sorry, variable 4, right, variable 6, variable 8, variable 10, variable 12 and variable 14। तो 7 आपके इवन नंबर्स यहाँ आ गए, और अब हम क्या करेंगे, इसको भी सेम वे नीचे तक 56 तक हम इसको स्क्रॉल डाउन कर देंगे। ठीक है, तो दिस इज आदि। अब ये जो हमने हाफ बनाया वो हमने ऑड और इवन के बेसिस पे बनाया। अब हम इसका वही सेम कोरिलेशन चेक कर लेते हैं। सेम वे कोरिलेशन में यहाँ चेक कर दी, इक्वल टू CORR, कोरिलेशन हमारे पास फंक्शन आ गया, राइट, array 1, array 2, array 1 is, this is my array 1, right, this is my array 1, right, again comma, now array 2, this is my array 2, this is my array 2, correct, or array 2, right, bracket closed, and now we have entered। अब आप देखिए correlation is, this is my correlation, this is my correlation value। तो क्या हमने जो ऑड और इवन बेसिस पे अभी हमने कैलकुलेट किया, एसपीएसएस फाइल में हम चलते हैं, उसमें भी क्या कोरिलेशन वैल्यू हमारी यही आई है, कोरिलेशन बिटवीन फॉर्म्स, यस, 0.850 that we had calculated in Excel, 0.849, अगेन आई वुड से इसकी हम फॉर्मेटिंग कर देते हैं फॉर्मेट सेल में। आई डोंट वांट नंबर, मुझे 3 डिजिट से ज्यादा नहीं चाहिए नंबर, या आई वांट ओनली डेसिमल 3 डिजिट नंबर, दैट्स ऑल। तो आप देखिए सेम नंबर, सेम कोरिलेशन दैट इज इन दी, यहाँ पर सेकेंड मेथड में, odd half and even half method में, that is also same, करेक्ट। अभी हम क्या करते हैं, एक और टेस्ट करते हैं इसी में। अब हम क्रॉनबेक अल्फा टेस्ट करते हैं कि इस मेथड पे और उस मेथड से क्रॉनबेक अल्फा में कितना डिफरेंस आया। ठीक है, अगेन वी विल गो टू स्केल रिलायबिलिटी एनालिसिस। ठीक है, सारे हमारे इसमें हैं। हम इसको एक काम करते हैं, सबको वापस कंट्रोल ए किया हमने, इसको वापस कर देते हैं, एंड अगेन वी विल ट्रांसफर, तो नाउ दे आर इन दी वापस। और अभी हम इसको अल्फा में, अल्फा दैट वाज द क्रॉनबेक अल्फा, हम इसको चेक कर लेते हैं। ओके, तो अभी आप देखिए हमारे पास एक क्रॉनबेक अल्फा आ गया। ठीक है, क्रॉनबेक अल्फा हमारे पास यहाँ आ गया, इसको हम भी कॉपी करके वहां ले जाएंगे अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में। नाउ यू कुड सी हियर, दिस इज द क्रॉनबेक अल्फा। अब 0.71, अब आप देखिए कितना वेरिएशन है क्रॉनबेक अल्फा में। जब हमने उसके थ्रू किया क्रॉनबेक अल्फा, दिस इज 0.871, लेकिन जब हमने ऑड हाफ एंड इवन हाफ बेसिस पे स्प्लिट मेथड से किया, तो दैट इज द क्रॉनबेक, दैट इज द रिलायबिलिटी 0.919, राइट। और जब हमने बात किया इसका यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ दिस फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ,
You could see here, this was the value. This will be, क्योंकि because equal length है हमारे तो data की 7 each, we have 0.729. So this value जो Cronbach alpha, that is somewhere in between both these values, split half and split half के दोनों method से odd and even, and this one is the first half and second half. Right, so this is the complete split half method, right? I'm sure that would be very helpful to you, and you will apply this test in your further research, and that would be helpful you. Thank you so much for watching this video, and definitely we are coming up in the next video how we have to enter data for the beginners and what is the meaning of all types of scale: nominal, ordinal, double, and ratio scale. Thank you so much.